अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लायक नहीं थी इसके कि तुझे छू सकूं मैं, लायक नहीं थी इसके कि तुझे छू सकूं मैं। किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है। किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है। लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। पापों में जीवन मेरा जख्मों से था भरा, पापों में जीवन मेरा जख्मों से था भरा। ईमान है ये मुझको मसीहा शाफी है। ईमान है ये मुझको मसीहा शाफी है। लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। आई हूँ दर पे तेरे, कर तू निगाह मुझ पर। आई हूँ दर पे तेरे, कर तू निगाह मुझ पर। है गिरे मेज से जो टुकड़े मुझे काफी है गिरे मेज से जो टुकड़े मुझे काफी है। लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। मसीहा काफी है। आमीन। For this wonderful song, प्रभु का धन्यवाद हो अच्छे गाने के लिए। सिस्टर मेरी ने प्रभु के लिए गीत गाया, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। That means your grace is sufficient for me. This is a confession of a believer, and this is the faith of the believer, that your
is sufficient for me. Amen. We have Brother John Mandeke amongst us. He is joined in from Congo. We welcome you, Brother John Mandeke. He's a young man, a young believer from Congo, and he also shares the word of God, but he has a bit of limitation because he speaks French, but I think he can speak few words of English. Brother John Mandeke, can you please switch on your mic, and if you like to switch on your camera to introduce yourself, and can you say a few words in English, brother? Brother John, can you say a few words in English? Brother John Mandeke, do you hear us? Can you hear us, brother? I think. Brother Jaswinder, are you ready with your things, brother? Yes, brother, I'm ready. Okay. I actually forgot to ask you, is it possible for you to share a few things today? Yes. Because I think you had some baptisms in your church. You can share something about, you can share a small message for today. Yeah, sure, brother. Yeah, that will also be an information for an encouragement for many people who are joined here. I will translate for you, and then with that you can share a small message Yeah, sure, for brother. today. Yeah. Okay, Sure. brother? Yes, brother. No problem. Yes. Yes. So we will hear some testimonies and a short message from Brother Jaswinder from Ludhiana, Punjab. Because God has blessed him with the congregation there, and God has blessed him with a service for the Lord in His kingdom. So we will hear from brother. And I think Brother John Mandeke has some technical problem. He sent me a message. So now we will hear another song through Sister Ripsim. Sister Ripsim, over to you, dear sister. You can start with your song, and then we will progress this meeting further. God bless you. Hindi song. आत्मा से भर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम. सिस्टर हिंदी सॉन्ग गा रही है, बहुत अच्छा गाना है. Yes, over to Sister Ripsim. आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम. आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम. खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको बेच रखे हम. खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको बेच रखे हम. आत्मा से भरकर
खुशबू फैलाते हम, काले दिलों का तोहफा ये अपना, तुझको भेंट चढ़ाते हम, काले दिलों का तोहफा ये अपना, तुझको भेंट चढ़ाते हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम, आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम। आमीन। God bless you all. Amen. Amen. God bless you, sister. This is a wonderful song that she sang in Hindi language. God has filled our sister with a lot of gifts and talents, and she is using them to praise God. And she received the blessing from God for doing so. God bless you. And we will continue our meeting now. We have Brother John Mandeke, as you can see, from Congo, but he is unable to use his microphone because there is a technical problem. So he sent me a message and is very much there, but he can hear us and he will be blessed with this meeting. And we are also blessed having the brother, although today he is not able to speak because of some issues with his microphone, but maybe next time they will be better. And now we are going to start the service with the meeting, with the prayer. And by Rajinder Masih के साथ हम प्रार्थना करेंगे. ब्रदर राजेंद्र मसीह प्रार्थना के द्वारा इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं. और इस मीटिंग और अच्छे गानों के लिए प्रभु का धन्यवाद, और सभी भाई बहनों के लिए प्रभु का धन्यवाद, और जो वचन हम सुनेंगे और प्रभु जो कार्य कर रहा है उसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद. So over to Brother Rajendra Masih for submitting this meeting in the hands of the Lord for today. Amen. God bless you, brother. तो आइए हम सब लोग खुदा प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में आते हैं. हालेलुया हालेलुया. प्यारे खुदावन तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी कि तूने हमें दिया कि हम प्रभु जी तेरे पवित्र नाम में इकट्ठा हो पाए और तेरा धन्यवाद कर सकें और तेरे पवित्र कलाम को हम अपने जीवनों में ले सकें. जैसा तूने वादा किया है कि प्रभु जी इंसान रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के उस वचन से भी जीवित रहता है जो परमेश्वर से मुख से निकलता है. प्रभु जी तेरे अनुग्रह से ही हम इकट्ठा हो पाए हैं इस तंगी में प्रभु, और इस मीटिंग में प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा बेहद शुक्रगुजार है प्रभु जी. पूरी जमीन आसमान का तू मालिक है, स्वर्ग तेरा सिंहासन है, जमीन तेरे पैरों की चौकी है प्रभु. तेरा धन्यवाद करते हैं. तो प्रभु जी तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं खुदावन. तू हमारा छुटकारा कराने वाला एक जीवित परमेश्वर है, तू ही हमारा उद्धार करता है और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं प्रभु जी. तो प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी तूने हमें मिलावटों से अंधेरे से बाहर निकाला है. और प्रभु जी ये सबसे प्रभु जी तेरा ही अनुग्रह है प्रभु जी. हम में कोई खूबी लियाकत नहीं कि प्रभु जी हम तुझे चुन सकते, बल्कि तूने ही चुना है, अनुग्रह किया है प्रभु जी. तेरे बेहद शुक्रगुजार हम प्रभु जी. और प्रभु जी जीवन की सारी मेहरबानियों के लिए प्रभु जी तेरे शुक्रगुजार हैं जो हमारे जीवनों में प्रभु जी तू करता है. प्रभु जी हम इस जमीन पे तेरे अनुग्रह के वसीले से ही चल सकते हैं. और खुदावन तू हमें हर छोटी से बड़ी आशीष बरकत देता है, संभाल के रखता है, हर दुष्ट की चालों से बचा के रखता है. तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं. और खुदावन तूने हमें जमीन पे पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराया प्रभु जी. तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु जी. और खुदावन खुदा हम अपना गुनाह तेरे आगे रखते हैं प्रभु जी. जाने जाने में हमारे से तेरे वचन के खिलाफ गुनाह हो जाते हैं प्रभु जी. हम कबूल करते हैं कि भी प्रभु जी हम मिट्टी के बर्तन हैं और हमारी सोच में भी प्रभु जी गुनाह है प्रभु जी. माफ कर दे. तो प्रभु जी हम तेरे साथ सीरियस होना चाहते हैं, तेरे आज्ञाकार होना चाहते हैं और तेरे वचन के खिलाफ प्रभु जी गुनाह नहीं करना चाहते प्रभु जी. हमें पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन ही पवित्र है प्रभु जी. और खुदाबंद जैसा तू चाहता है प्रभु जी हम तेरे वचन के मुताबिक चलें प्रभु जी.
हम इस जमीन पे लोगों को नहीं बल्कि तुझे खुश करने वाले हो सके प्रभु जी। दया कृपा कर हमें अपने वचन में बढ़ाई रख प्रभु जी। और हम चाहते हैं हमारे जीवनों में प्रभु जी तू बढ़े और हम घटे प्रभु जी। और खुदावन हम पूरे शून्य हो जाएं प्रभु जी। और किसी भी चीज का घमंड ना करें प्रभु जी। और किसी भी बात की चिंता ना करें, जैसा तूने कहा है कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करो बल्कि मेरे धर्म और राज की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे प्रभु जी। हमें हम पे कृपा कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। और खुदावन हमारे पे क्रोधित ना हो प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। और खुदावन हम हर रोज प्रभु तेरे साथ सही चलें और तिक्तता की ओर बढ़ते जाएं। और खुदावन हमारी कमी कमजोरियों को तू बेहतर जानता है, क्योंकि प्रभु जी तू दिल और घुटनों को जांचने वाला परमेश्वर है, तुझसे कुछ भी छुपा नहीं। अनुग्रह कर प्रभु जी, होने दे खुदावन, हमें त्यारी वाला आत्मा दे प्रभु जी। हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु जी, कि हम सदा तेरा धन्यवाद करें प्रभु जी और तेरी महिमा करें प्रभु जी। और हम अपने जीवनों में पहला स्थान प्रभु जी तुझे दें प्रभु जी। दया कृपा कर प्रभु जी। और हमें अपनी आमद के लिए तैयार कर प्रभु जी। और होने दे खुदावन, जब तू आए प्रभु जी हम इस योग्य बन पाए कि हम तेरे सामने खड़े होने के योग्य हो सके प्रभु जी। और खुदावंद जितने भी भाई बहन में इकट्ठे हुए हैं, हर एक भाई बहन को प्रभु जी दुनियावी और आत्मिक आर्थिक बरकत दे प्रभु जी। अगर कोई भाई बहन प्रभु जी बीमार है प्रभु जी, तो वो खुदा है जो अब शिफा देने वाला परमेश्वर है। तेरा पवित्र लहू प्रभु जी शिफा देता है और तेरा पवित्र लहू ही निजात देता है प्रभु जी। दया कृपा करो, उस भाई बहन को उठाकर खड़ा कर प्रभु जी, ताकि वो विश्वास में प्रभु जी और आगे बढ़े और तेरा एक अच्छा गवाह बने प्रभु जी। और प्रभु जी उन सेवकों के लिए जो दुनिया भर में तेरे कलाम को पूरी ईमानदारी खराई के साथ दे रहे हैं तेरे लोगों को, उनको आशीष बरकत दे। और ब्रदर फ्रैंक, ब्रदर मैनुअल को प्रभु जी तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देते हैं, जैसे तूने बीते समय अपने सेवा के लिए इस्तेमाल किया, आने वाले समय में और इस्तेमाल कर, ताकि बहुत से लोगों को वो तेरे साथ जोड़े प्रभु जी। और खुदावन शारीरिक तंदुरुस्ती देना प्रभु जी। तो आज जो गीत गाए गए हैं प्रभु जी, होने दे तेरे घर में कबूल हो प्रभु जी। और आज का वचन तेरे से मांगते हैं प्रभु जी। आज अपने सेवक के द्वारा प्रभु जी एक एक बच्चे के साथ आज बातचीत कर प्रभु जी। हम उस कलाम को प्रभु जी सुनने वाले, उस पे चलने वाले हों, बहुत सारा फल लाने वाले हो सके। अपने सेवक के होंठों को आज छूना, पवित्र करना प्रभु जी। और खुदावन हमें अपने कलाम में बनाए रखना। और हम जूम मीटिंग को सब इस मीटिंग को सब कुछ तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देते हैं प्रभु जी। कैसे भी कोई डिस्टर्बेंस काम ना करने पाए प्रभु। अनुग्रह कृपा करना, अपने आने तक सबको संभाल के रखना प्रभु। और हम जब भी प्रभु जी इकट्ठा हों, सिर्फ तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम जो तुझसे मांगते हैं हमें तू देता है। और इस वक्त भी प्रभु जी हमने जो तुझसे मांगा तूने हमें दे दिया है, क्योंकि हम मांगते हैं पूरे जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से, आमीन आमीन। Amen. 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 God bless you. God bless you, brother Rajendra Masi, for this prayer. और सभी भाई बहन जो लोग यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, सबके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद हो. We thank God for everyone, whoever has been able to join by grace of God, our brothers and sisters, and we thank God now for this moment that we are able to come together to hear the word of God, some testimonies. We have heard some great singing. Prayers have been done for God's blessing on this meeting, and we thank God for everything. अब समय है कि हम कुछ गवाहियों के बारे में सुनते हैं भाई जसविंदर से, जो लुधियाना से ज्वाइन करे हैं, और
वो बताएंगे। आज जैसा कि मेरे पास खबर है कि लुधियाना की कलीसिया में आज काफी सारे बपतिस्मे हुए हैं और उनके बारे में भी भाई बताएंगे। और ये खुदा का अच्छा काम हुआ है और दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड दैट गॉड इज bringing in more and more sheep to his fold, because our Lord is a good shepherd, and the sheep who belong to him, they hear his voice, and at a appointed time before the Lord comes, even the lost sheep would have joined the flock of Jesus Christ, would be a member of his spiritual body. So I would not take much time, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अब भाई जसविंदर को ये प्लेटफॉर्म हैंड ओवर करता हूँ। Brother Jaswinder will be speaking in Hindi. I will translate for him. I will be translating for Brother Jaswinder. Brother Jaswinder, you can also record if you are Yes. able to, brother. Yes, brother, I'm recording. God bless you all brothers and sisters. प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को प्रभु आशीष दे। God bless you, brothers, sisters, and Brother Jaswinder continue. और जिस तरह आपने भाई के मुंह से सुन ही लिया है कि लुधियाना में प्रभु परमेश्वर ने आज और ज़्यादा बड़ी आशीष दी है। As you have heard through our brother that the Lord has blessed the church in a great manner, in a great way, today on this Sunday in the church in Ludhiana. और थोड़ा वचन में से हम शुरुआत करेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जाएंगे हम। We will start saying this through the scriptures, and we will read from the 2nd chapter of book of Acts. और 2:36 से लेकर 2:42 तक हम तकरीबन सभी जानते हैं जहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है। And we all mostly know that as we are going to read from Acts chapter 2 verses 36 to verses 42. और 2003 में मैंने प्रभु के वचन को जाना था। And I had accepted the word of God in the year 2003. और मैंने एक पेंटिकोस्टल चर्च में जाना शुरू किया। And I started joining and going to a Pentecostal denomination church. लेकिन थोड़े ही महीनों बाद प्रभु के आत्मा ने मुझे वहाँ से हटा दिया, रोक दिया। But after a little while, the Spirit of God cautioned me and asked me not to be going there anymore. और बहुत सी चीजें थी ऐसी जो बाइबल से मेल नहीं खाती थी। There were many things that would not be in accordance to the word of God that was being said there. हालांकि मैं नया विश्वासी बना था और मुझे इतनी बाइबल नहीं पता थी। Although I was a newcomer believer and I did not know so much about the Bible. लेकिन जितना भी था प्रभु परमेश्वर ने मुझे उस वक्त बता दिया कि यहाँ वचन के मुताबिक नहीं चल रहा सब कुछ। But however, the Lord cautioned me and Lord told me to caution me, to tell me that there was many things were not happening according to the word of God. और मैंने जाना बंद कर दिया, मैं घर बैठ गया। And I stopped going there and I just stayed at home. और 1-2 संडे निकले मेरे ऐसी तरह ही। And likewise I just spent a couple of Sundays. और मुझे अंदर से ऐसे लगने लग गया कि बहुत ज़्यादा मैं प्रभु से दूर हो रहा हूँ। Internet is frozen, brother. Sorry, brother. Can you hear me now? Can you hear me, brother? Now it's better. In between it paused. Okay, brother. मुझे थोड़ा समय दे, मैं जब तक आपसे बात करता हूँ और ट्रांसफर भी कर लेता हूँ मैं। तो प्रभु brother is doing some adjustments while he's talking to us. तो प्रभु परमेश्वर ने मुझे ये ऐसा अवसर दिया कि मैं कुछ संडे घर पे बैठा रहा। And the Lord gave me a chance that for few Sundays I just stayed away. I stayed at my home. लेकिन मुझे अंदर से खालीपन लगा फिर। But I was feeling very hollow from inside.
और मैं प्रभु से फिर मैंने प्रार्थना की घर बैठे हुए। And then I prayed to God while sitting at home. मैंने कहा प्रभु आपने मुझे वचन दे दिया है, संगति भी दे दी थी, अब मैं घर बैठ गया हूँ। I told Lord that, Lord, I'm just sitting home, although you have spoken the word to me. मैं कहा प्रभु मैं घर पे तो बैठ नहीं सकता, उतना ही मैं कमजोर हो रहा हूँ। And I said, Lord, sitting at home, I'm becoming more and more weak. मैंने कहा प्रभु परमेश्वर उस वहाँ गड़बड़ी हो सकती है जिस जगह मैं जाता था, लेकिन तेरी बाइबल में कोई गड़बड़ी नहीं है, तेरी बाइबल सच्ची है। I said, Lord, it can be, something can be wrong, something can be just away from your scripture, from your word, where I have been going, but your word is perfect, and I am depending on your word. मैंने कहा प्रभु परमेश्वर मुझे अपनी सच्ची संगति से, सच्चे कलाम से मिला। And I said, Lord, bring me to your true fellowship and the true word. और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और उसका उत्तर दिया। And the Lord answered my prayer, and he communicated to me his answer. प्रभु ने अपना एक भाई, विश्वासी भाई मेरा भेजा मेरे पास, और उसने इनविटेशन दिया अपने कलीसिया चर्च का। And a believer brother came to me and he gave me an invitation to come to his fellowship. और मुझे नहीं उस वक्त इतना ज़्यादा पता होता था संस्थाओं के बारे में। And brother said that he did not know too much about those different teachings and different denominations and churches. लेकिन मैं उसके कहने पर उसके साथ एक चर्च में गया। But as per his advice, I went to that fellowship where he asked me to come to. और पहले संदेश में मैंने गॉड हेड के बारे में सुना। And in the very first sermon, I heard about Godhead. और उसी वक्त मुझे अंदर से पूरी तसल्ली हुई और मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही मैसेज है। And that is the time in my heart, I was very, very satisfied and happy, and I knew this is the true message. फिर मैं कंटिन्यू जाना शुरू किया। And I continued going to that fellowship. और प्रभु के पवित्र आत्मा ने सबसे पहले मुझे गॉड हेड समझाया। And Spirit of God, first thing, taught me the Godhead. और इसी तरह मैं बता सकता हूँ कि प्रभु एक नए विश्वासी के जीवन में किस तरह कार्य करता है। And this is how I can testify that how God works in the heart of a new believer. उसके बाद प्रभु ने मेरे ऊपर बैप्टिज्म खोला, जो ट्रिनिटी का गलत बैप्टिज्म था। Then Word of God opened up the true baptism of me, because I knew the baptism according to Trinity was wrong. और इस तरह मैं समझ गया कि जो नाम है वो प्रभु यीशु मसीह नाम है, कंप्लीट। And then the name, according to Matthew 28:19, I understood the full name is Lord Jesus Christ. और मैं समझ गया कि सब कुछ यहीं से शुरू होता है और इसी में सब कुछ है। And then I knew that everything is contained in this and everything begins from here. और प्रभु मुझे लगातार बढ़ाता रहा वचन में, वचन के प्रकाश में। And the Lord kept on leading me in the light of His word. और एक समय ऐसा आया कि मुझे प्रभु ने सेवकाई मुझे दी। And then there was a time that God gave me a service to serve Him. और उस सेवकाई में बहुत सारी रूहों ने प्रभु के नाम में बपतिस्मा लिया। And then many of the souls came forward by grace of God, and many were baptized in the name of Lord Jesus Christ. लेकिन वहाँ पर भी एक समस्या ये हो गई कि वो भी संदेश के अंदर एक ब्रानामाइट जैसा ही संदेश था। But there was yet another problem there, that there was a little bit of mixing in the message of this hour. और प्रभु परमेश्वर मुझे हर समय आगे निकालता रहा, बढ़ाता रहा, मिलावटों से दिन बाय दिन निकालता रहा। And the Lord kept leading me and kept on isolating me and bringing me out from those errors and wrong teachings.
तब मैंने उस बहुत बड़ी कलीसिया को भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे एक चुनना था जहाँ बड़ी कलीसिया है, जहाँ प्रभु का सत्य। And then there came upon a time in my life when I had to give up and dissociate myself, separate myself from a large congregation where there was a mixed up message and choose between the true message. मैं निकल आया वहाँ से, और मेरे पास फिर कुछ भी नहीं रहा, ना जगह, ना कलीसिया, ना कांग्रेस, कुछ भी ना टीम थी कोई मेरे पास। And when I came out from there, physically I was left with nothing. There was no people, there was no place, and there were no opportunities for me. और एक छोटा सा कमरा मेरे खुद का मेरे पास था, And I had a small room where I was living, और मेरा परिवार था मेरे साथ, and just my direct family was with me. ये 2016 की बात है। This I am speaking about 2016. लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि हमारे पास सत्य था, And the greatest thing we had and possessed was that we possessed the truth. और फिर हमने अपने ही छोटे कमरे में परिवार के साथ ये शुरू की सेवा। Then we started worshiping and serving God using the small room that we had. और मैंने ये सीख लिया था कि प्रभु परमेश्वर जो है वो सत्य के साथ होता है। And I had understood and I could confirm that the Lord God always stays with the truth. और उसे भीड़ों से कोई मतलब नहीं है, And He is not bothered. He doesn't care about all those different teachings. मैं लगातार प्रार्थना में प्रभु से कहता रहा कि प्रभु, लुधियाना में, पूरे पंजाब में कोई भी नहीं है जो इस सत्य को सुने। And then I was worried and I kept on pleading to God, is there no one in this city of Ludhiana and in Punjab state who will like to hear the truth? मैंने कहा, प्रभु क्या ये इस तरह चलेगा, एक छोटे से कमरे में परिवार में बैठ के इतनी बड़ी सच्चाई के लेके निकलेंगे? And then I was asking, Lord, how is this possible that we have all this greatest truth for the world and we are just confined to this small room, and how will it continue? I kept on praying to the Lord. मुझे इतना पता था कि मेरे पास संपूर्ण सत्य है, And I knew that I am standing with the truth. और सत्य जो है वो प्रभु है, And truth is the Lord. और प्रभु अपने सत्य के साथ होता है, And the Lord stays always with His truth. वो फिर प्रभु परमेश्वर सारे दिन हालात बदल देता है। And then the Lord is capable of changing the whole circumstances Himself. फिर धीरे धीरे कुछ लोग आने शुरू हुए मेरे पास, And slowly some more people started coming and having fellowship with us. और मैं उन्हें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सिखाता हो रहा, गलत शिक्षाओं से ठीक करता रहा। And I kept on trying to teach them about the wrong teachings and about the truth which is found in the Bible. और प्रभु ने भी मुझे ऐसे लोग दिए जो पहले ही धर्म के सताए हुए, गलत शिक्षाओं के जो दबाए सताए हुए थे, वो प्रभु ने मुझे दिए। And the Lord sent such people to me, those who were already in many kind of different teaching, and they were not really happy, but they were looking for the truth. जो लोग सचमुच प्रभु से प्रेम रखते थे, सच्चे प्रभु को ढूंढ रहे थे, And they were really seeking the truth and the true Lord. और हम एक कमरे में कई बार 2 जाने होते थे, संडे को कई बार 3 होते थे। And sometimes we will be 2 or 3 people in that small room in my place on Sunday. और मैंने ये बात भाई अमैनुअल को बताता था कि हम 2-3 ही होते हैं संडे में। And I used to share this information with Brother Emmanuel those days, that we are just 2 or 3 people in our room. और मैं बड़ा उस वक्त मायूस था कि इतनी बड़ी कलीसिया चलाने वाला आज 2-3 परिवार के मेंबरों के साथ बैठा है। And I was feeling quite disappointed and frustrated that being connected with such a large congregation, now I am left with only 2 or 3 people in my room. लेकिन ब्रदर मैनुअल ने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे कि प्रभु ने 2-3 ही मांगे हैं।
But Brother Emmanuel encouraged me and he told me, don't worry, brother, the Lord is, even 2 or 3 are enough for the Lord. और मुझे इस बात से बहुत तगड़ाई मिली And then I was thoroughly encouraged by this statement. और मुझे 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 बाइबल में से पता चला कि हैकल तो भीड़ भरी हुई थी, प्रभु 12 जानों के साथ पहाड़ में बैठा था And I knew that the whole temple was full of big crowd of the people, but the Lord was with very few people, say about dozen people. He was standing, he was present in a mountain talking to them. और फिर मैंने फैसला लिया कि बोलेंगे सच्चाई ही, चाहे ये 2-3 भी ना रहें, लेकिन बोलेंगे सच्चाई. Then I had confirmed to myself and I confessed to myself and determined that we will stay with the truth, let it be 2 or 3 people only. और प्रभु परमेश्वर ने फिर अपना हाथ घुमाया And then the Lord used his hand to bless us. और दिन बदलने शुरू हो गए. And the days started changing from then. लोग निकल के बाहर आने लगे And people started coming out from the different teachings and different places. पवित्र आत्मा लोगों की समझ खोलने लगा And the Holy Spirit of God started working on their minds and started opening their understanding. हम 2 से 4 हुए, 4 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, 20 से 40 हुए, 40 से 80 हुए. We kept on multiplying in numbers day by day, day by day. और लुधियाना में, पंजाब में आज अंत समय की सही कलीसिया सबसे बड़ी यही है हमारे पास. आमीन. And this congregation that we have here now in Ludhiana is the largest congregation not only in numbers but in truth. और मेरा विश्वास है इस गवाही से आपका भी विश्वास बड़ा होगा. And I'm sure that by this testimony of truth, even your faith has been encouraged. और प्रभु ने हमें यही कहा है कि एक दूसरे का ईमान बढ़ाएं. And the Lord has asked us that we should encourage and edify each other. और जो लोगों को गलत फहमी है कि परमेश्वर है ही नहीं या काम नहीं करता, वो इस गवाही से जान सकते हैं कि परमेश्वर कार्य करता है. And those who think that there is no God and maybe this is only a myth, they are not sure if that God is still working today, they can be encouraged and believe now that God really works and he is a living God. मैंने अपने जीवन में प्रभु को कार्य करते हुए देखा है. I have seen the Lord working in my life. मैं ही नहीं, प्रभु ने जो मेरे साथ लोग जोड़े, उन्होंने भी अपनी आंखों से प्रभु को कार्य करते देखा है. And not only me, but the people that the Lord has added unto our fellowship and congregation, even them have also felt and they have also experienced the Lord working in their life. और उनका भी ईमान विश्वास बहुत तगड़ा मजबूत हुआ कि ये प्रभु ने ही किया है सारा कुछ. And even their faith has been encouraged and strengthened that it is the Lord who is doing this. और हमारे पास प्रभु ने बहुत मिक्स तरह के लोग भेजे. And there are different kind of people that the Lord sent to us. अनविश्वासी भी हमारे पास आए. There were people who were not in faith. और विश्वासी भी आए हमारे पास. And there were people who were so-called people as believers as well. ये प्रभु ही है कि इतनी बड़ी कलीसिया जो मैं छोड़ के आया था, उसके बाद दोबारा से फिर से बड़ी कलीसिया बना दी प्रभु ने. I can confirm it is the Lord only that who blessed us while we left such a large congregation and came out and we were left with nothing. ये प्रभु ही कर सकता है. Only Lord can do this. और हमारे पास ऐसे ज़्यादातर केस हैं जो पहले से ही जो विश्वासी थे, ऐसे ज़्यादा केस हैं हमारे पास. There are many people, those who were in some kind of faith earlier. हमारे पास ऐसी गवाहियाँ हैं जो 20 साल से चर्च जा रहे थे, जो 15 साल से चर्च जा रहे थे. There were people who were members of the different churches for many years, for 10 years, 15 years, 20 years. लेकिन जब हमने बात की तो हमें पता चला कि उन लोगों का उत्पत्ति कुछ भी नहीं, बस कुछ भी नहीं सिखाया गया उन्हें. But when we spoke to each other and we discussed about the biblical truth, then
we came to know that those people were not even taught about the basics from the Genesis. आज वही लोग हैं, कुछ ही समय में प्रभु के पवित्र आत्मा ने सारी बाइबल खोल दी उनके आगे। And now is the day, because of the grace of God, the Holy Spirit of God has opened up the manifestation, the revelation of the Bible in their minds. प्रभु परमेश्वर ने सबके ऊपर अपना एक परमेश्वर की तालीम खोली। And the Lord God has opened up the one true teaching on their minds. बाइबल वाला सच्चा बपतिस्मा समझाया। The Lord made them understand the true baptism according to the scriptures. और बहुत सारे लोगों ने अपना बपतिस्मा बाइबल वाला सही किया। And many people corrected their baptism, those who were earlier baptized wrongly. आज भी ऐसे भाई बहनों ने बपतिस्मे लिए हैं जो 15-20 साल से चर्च जाती थी। And today also quite a few brethren have taken baptism, those who have been attending churches for 15 to 20 years. और प्रभु अपना कार्य कर रहा है। And the Lord is continually doing his work. और प्रभु अपने लोगों को निकाल रहा है यहाँ पर। The Lord is bringing out his people from the confusion. और सच्चा वचन जो है वो प्रचार हो रहा है। And the true word is being preached. और इस सत्य को कोई नहीं रोक सकता। And no one can prevent them coming forward into this truth. और जब सच्चा वचन लोग ग्रहण कर रहे हैं, And while they are receiving the true word, और जब वो पूरा वचन ग्रहण कर रहे हैं, while they are receiving and acknowledging the full word, वो पूरी शिफा भी कबूल कर रहे हैं। they are also acknowledging and receiving the full healing. हम प्रभु के सच्चे वचन के पीछे हैं। We are after the true word of God. बाकी प्रभु ने सारी चीजें पीछे लगा दी हैं। All things the Lord has provided into this. हमारे पास एक बहन आई है जो ऑलरेडी 20 साल से चर्च जा रही थी। One sister came to us who had been fellowshipping in a church for over 20 years. और उनकी एक लेग जो थी वो छोटी थी। And she had a deformity in one of her leg which was a bit shorter than the other one. और उन्हें हर साल सर्जरी के झमेले में पड़ना पड़ता था। And every year she had to face the complications of the surgery. और उनके हाथ भी बहुत कांपते थे। And her hands were shivering due to some kind of illness. और मैंने उन्हें ये सच्चा वचन सारा बताया। And I spoke the true word to them. और सिस्टर ने हृदय से वो सारा वचन कबूल किया। And that sister received the true word by her heart. उस सिस्टर की 3 इंच लगा लीजिए, 3 फिंगर के जितनी जो है हड्डी बढ़ गई अपने आप, देखिए। And now you see, there was a leg which was short, about 3 inches. That bone has grown and she has been healed. और पिछले रविवार उस बहन ने आके गीत भी गाया था इस मीटिंग पे। And the last Sunday in this meeting, that sister sang a song as well. उसके हाथ भी नहीं कांपते। Now even the shivering of her hands has been healed. उनके हस्बैंड भी वापस परिवार में आ गए हैं, उनके लिए भी हमने प्रार्थना की थी। And we even prayed for her husband to come and rejoin their family, and he has come back into the family. उसकी बेटी की न्यूरो की मेडिसिन चलती थी। And her daughter used to be on the medicines connected with the neurology. उसकी बेटी ने भी इस सच्चे वचन को कबूल किया। Yeah, her daughter also acknowledged and received this true word. और आज की डेट में उसकी एक भी दवाई नहीं चलती। And these days she doesn't need to take all those neuro medicines anymore. प्यारे भाई और बहनों, Dear brothers and sisters, प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। the Lord Jesus Christ is the true God. वो सच में जीवित परमेश्वर है। He is the living God. वो कार्य करता है। He works. और हमने देखा है। And we have seen it in our lives. हमें बस अपने आप को सही करने की जरूरत है। We need to correct ourselves and receive Him. कहाँ कैसे ठीक हो हम?
How do we correct ourselves? हमें कैसे पता चले कि करेक्शन क्या है? How do we know? How do we correct ourselves? पवित्र बाइबल सबसे बड़ी करेक्शन है। The biggest book for our correction is the Holy Bible. कल एक भाई मुझे बता रहा था, एक बहन की, एक भाई ने उसे कहा, And yesterday a brother was telling that a sister was told by a person, कहता मुझे एक जगह दिखा दें जहाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा हुआ है। he said, show me one place where there has been a baptism in the name of Lord Jesus Christ. कहता बपतिस्मा तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में है। And he said the baptism is in the formula of the Father, Son and the Holy Ghost. मैं उसके सवाल से ही समझ गया कि उस भाई को कुछ भी नहीं पता। And then I understood the teaching that he was giving to that sister. I understood that this person doesn't know anything about the scripture. अगर वो बाइबल को पढ़ने वाला होता तो ये बात ना करता। If he was a student of the Bible, he would never speak such thing. मैं समझ गया कि इनके सेवकों ने इन सभी को अपने ऊपर निर्भर करवा दिया है। And I said that all their teachers and all their teachings have made them so much dependent on them. किसी की सेल्फ स्टडी नहीं है, किसी की भी। No one is doing a study of the Bible themselves. वो विश्वासी नहीं हो सकता जिसकी सेल्फ स्टडी नहीं है। One who does not study the scripture himself on personal basis cannot be a believer. एक विश्वासी वचन को पढ़ेगा ही पढ़ेगा। A believer will go personally into the reading and learning of the scriptures. और जो वचन पढ़ता है, वचन उससे बात करता है। And when a person reads the scriptures, the word of God speaks to him. मैंने फिर मैसेज भेजा उस बहन को कि आप भाई को कहें। Then I sent a message to that sister to tell that man कि हमारे साथ प्लीज बैठें आप, that come and sit with us, क्योंकि ये प्रभु के वचन का मामला है। because this is about the matter of the scriptures, the true word of God. ये अनंत काल के जीवन या अनंत काल की मौत का मामला है। This is the time of either everlasting death or the eternal life. कि इसलिए आइए हम बैठ के बात करते हैं। Let us sit down and talk together and study together. सबसे पहले विश्वास करें कि बाइबल ही संपूर्ण है। The first step of our faith is that we must believe that Bible is the true word of God. उसकी जगह फिर किसी को ना रखे, ना चर्च को, ना किसी पास्टर्स को। Then we should not keep anything as a substitution for the word of God, neither anybody, any person, nor any church. और अगर विश्वासी हैं तो आपकी पर्सनल बाइबल भी होगी। And if we are a believer, then we have a personal relationship with the word and we are personally connected with the Bible. और आप भी हमें बताएं, फिर हम भी जो प्रभु ने हमें दिया है हम बताते हैं। You come and tell us what you have understood there, then we will also tell you how the Lord has spoken to us. मैंने कहा भाई हम तो पूरी बाइबल से आपको भेज देंगे रेफरेंस की सच्चा जीवता और बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। I told him, I advised him, we can give you all the supporting scriptures and all the supporting evidence about the true baptism in the Bible. 2 या 3 जनों की गवाही सच्ची मानी जाए लिखा है। And Bible says that 2 or 3 witnesses must be acknowledged and accepted. और हमने तो पता नहीं कितने हवाले भेज दिए। And we sent so many references for him. और मैंने कहा कि आप मैसेज दे मेरा कि अब भाई ने कहा है कि आप भी मुझे अब एक जगह दिखा दे जहाँ बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हुआ है। Then I told that sister to tell that person, show me one instance, one place where the baptism has been administered in the name of Father, Son and the Holy Spirit formula. कोई जवाब नहीं आया। There is no answer to that. और देखिए सत्य में ताकत होती है। Now you see, the truth has the power. झूठ के पांव नहीं होते। And the lie cannot stand. It has no foundation. सत्य कभी भी झूठ कभी नहीं टिक सकता सत्य के आगे। And the lie can never ever stand in front of the truth. झूठ कभी भी बात नहीं करेगा।
And the true will hide things, it will never speak. और सत्य से लड़ना कोई समझदारी नहीं है। And to fight and to encounter the truth is not a wisdom. हम प्रभु के शुक्रगुजार लोग हैं। We are so thankful to God. प्रभु ने हमें संपूर्ण सच्चाई दी है। The Lord has blessed us with absolute truth. और देखिए लुधियाना में बहुत लोग प्रभु के साथ सही हो रहे हैं। And now you see in the place in the city of Ludhiana, there are many people who are correcting and standing with the Lord. और जो बाइबल में पेंटिकोस्टल वाले दिन पहला बपतिस्मा हुआ था, वही बपतिस्मा यहाँ हो रहा है। And the baptism which took place in the Bible on the day of Pentecost, the first baptism, likewise the baptisms are taking place here now. प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य बहुत तेजी से कर रहा है। The Lord is swiftly and quickly doing his work. जिस तरह भाई ने बताया, जब आखिरी भेड़ प्रभु के आ जाएगी बाड़े में, तब समय खत्म हो As जाएगा। was said by the brother, when the last sheep will join the sheepfold of the Lord, इजकल 38 की 39 वाला मामला तैयार है। then Ezekiel 38 and 39 is ready now. फुरात नदी सूख चुकी है And the river Euphrates is drying up. और प्रभु ने अपनी सारी चीजों का, सारी तलीमों का सुधार कर लिया है। And the Lord has brought in correction for most of the teachings of the Bible. मलाकी 4 की 5 पूरा हो गया हुआ है। And the prophecy of Malachi chapter 4 and verse 5 has been fulfilled. मत्ती 24 की 14 हमारी आंखों के सामने पूरा हुआ। Matthew 24:14 has been fulfilled in front of our eyes. मत्ती 24 की 45, 46, 47 हमारी आंखों के सामने है। And the service and the ministry of, according to Matthew 24:45 to 47, is happening in front of us. इतनी रुकावट, इतने जोर के बाद भी फिर भी प्रभु के लोग प्रभु में आ रहे हैं। With all these obstructions and all the difficulties, the children of God are advancing towards the Lord. तो ये किस चीज के चिन्ह है? What does it prove? What does it testify? प्रभु अपने लोगों को लेने आ रहा है The Lord is coming for his own, और वो अपना कार्य कर रहा है। and he is working. और लुधियाना में अगर उसकी चुनी हुई भेड़े हैं, वो निकाल रहा है। And he is bringing out his chosen sheep, bringing them out and joining them together to his fold. और प्रभु ने हमारी आंखों के सामने एक सत्य का बीज बोया था, छोटा सा बीज लुधियाना में। A small seed, which was the true word with the truth, was sown here in the city of Ludhiana. आज देखिए कितना बड़ा पेड़ बन गया है। Now it has grown into such a young tree. और धर्मों से लोग निकल के आए हैं। People are coming out from different faiths and different religions. संस्थाओं से, कैथोलिक से, पेंटिकोस्टल से लोग निकल के आए हैं। People have come out from different sects and different denominations and teachings. अब सब बाइबल में आ गए हैं वापस। Now they have come back to the Bible, the Word of God. और जो प्रेरितों के काम में पहली कलीसिया की एक्टिविटी थी, And the one that was the activity and following of the first church in the book of Acts, वो सारी की सारी लुधियाना में सारी कंटिन्यू चल रही है। and it is continuing to happen in the city of Ludhiana now. वो लोग लगातार शिक्षा पाने में ललीन रहते हैं। They are continuously busy in being educated in learning about the truth of the Word of God. लगातार प्रार्थना सभा करते हैं, संगतियां कर रहे हैं। And the prayers are continuously happening. लगातार प्रभु भोज कर रहे हैं The Lord's Supper is being partaken of continuously. और प्रार्थना करने में ललीन रहते हैं। And they are continuously busy in doing the prayers. जरूरी है कि आखिरी कलीसिया में भी वही एक्टिविटी पाई जाए जो पहली कलीसिया में थी। It is necessary the last church must be busy in the same activities and teachings and learnings as was in the first church. प्रभु एक साफ सुथरी बिना झुर्री वाली अपनी दुल्हन तैयार कर रहा है लुधियाना में। The Lord is preparing a chaste and the holy virgin bride for himself. एक समय था कि मैं अकेला ही सारा कार्य करना पड़ता था। And there was a time that I had to
I had to take all the responsibility by myself singly. आज प्रभु ने मुझे इतने भाई और इतनी बहनें दी हुई हैं जो सारा कार्य संभाल रही हैं। Today the Lord has blessed with so many brothers and sisters who are sharing the responsibilities jointly in this work. और प्रभु की 5-fold मिनिस्ट्री भी मैंने देखी है अपनी कलीसिया में पूरी And होती। now I can see the fivefold ministry working in the church. अब आप खुद देखिए, ये प्रभु ही कर सकता है, ये किसी इंसान का कार्य नहीं है। Now how can we not appreciate this, that only Lord can do this? और मैं आपको यही बता सकता हूँ कि प्रभु ने किस तरह कार्य किया है। I can only testify how the Lord has worked here. देखिए, प्रभु में बने रहें। We must stay in the Lord. प्रभु में किस तरह बने रह सकते हैं? How do we stay in the Lord? प्रभु वचन है। The Lord is the Word. Lord God is in His Word. उसके वचन में बने रहें। We must be found in His Word. और जब आप प्रभु के वचन में बने रहते हैं, आप प्रभु में ही बने रहते हैं। And when we are in His Word, then we are in the Lord. फिर प्रभु आप में बना रहता है। Then the Lord is in us. फिर आप वो डाली होते हैं जो लगातार बढ़ती जा रही है। Then we become that branch with the vine who continuously grows and flourishes. और फिर देखिए, आप फल देख सकते हैं कि अब फल लगे हुए हैं इस कलीसिया में। And then you can see the fruits. You can visibly see the fruits on those branches. बस आप सिधाई के साथ चलते रहें। Let us continuously and sincerely and honestly continue to walk with the Word. मुश्किलें बहुत आएंगी, There are so many difficulties on the way. मुसीबतें बहुत आएंगी। There are too many persecutions and difficulties on the way. मेरे पास छोटा सा कमरा था, I had a very small room सिर्फ परिवार के मेंबर थे हम, and we were just a small family members there. नौकरी नहीं थी मेरे पास, I did not have a job for myself सिर्फ और ऊपर से कर्ज बहुत था। and I had too much of the loans and too much of the debt on my head. अब आप देखें, ये कौन है जिसने सब बदल के रख दिया। Now you see, who is He who has transformed the whole situation? प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। He is the living God, Lord Jesus Christ. आज भी वो अपने लोगों के साथ है। Even today, He stands with His people. He is with His people. वो शुरू से ही अपनी सही जगह पर खड़ा हुआ है। He is always standing on His rightful place. हम अपनी जगह से हिल गए हैं। We moved away from our right place. हम प्रभु के होकर भी प्रभु में नहीं हैं। And we claim that we are with the Lord, but we are not found in the Lord. हम प्रभु को लेकर साथ में लालच भी साथ में लेकर चल रहे हैं। We sometimes have different things associated, maybe greed along with this. And when we say we are with the Lord, और सबसे पहले कि ढूंढे कि प्रभु की इच्छा क्या है। first we should seek what is the will of God for us. प्रभु का वचन कहता है, अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो भी कि नहीं हो। The word of God says, examine yourself, are you in the faith? किसी दूसरे को जांचने से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। We will not be benefited. We will not achieve anything if we start judging others. We must judge ourselves. Examine ourselves. अपने आप को देखें, कौन सी चीज है जो रुकावट डाल के बैठी हुई है। We must examine ourselves. What is that thing that is stopping us, our relationship between us and our God? कौन सा ऐसा गलती गुनाह पाप हो रहा है कि जिससे वो आशीष बेदारी नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। Which is the sin which is stopping us to receive those blessings which we should have received? हमारा सारा दिन ये चीज पे ध्यान होना चाहिए कि प्रभु की इच्छा क्या है। The whole day our focus should be to find the will of God. और सारा दिन हमें देखना है कि जो प्रभु के वचन के खिलाफ हम सोचते हैं, बोलते हैं, वो हमारे जीवन से दूर होना चाहिए। The whole day we sometimes strive, sometimes we make an effort to go against the word of God to create a mixing there. That should stop. एक परमेश्वर को मान लेना, मूर्ति पूजा छोड़ देना, ये काफी नहीं है। Just to think about one God is not enough.
बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेना काफी नहीं है। Just taking the baptism in the name of Lord Jesus Christ is just not that enough. ब्रदर फ्रैंक को जान लेना काफी नहीं है। Just to know Brother Frank is not enough. उसके साथ फोटो खिंचवा लेना ये काफी नहीं है। Just to have pictures and photographs with him is not enough. वचन तो कहता है कि तू किसी चीज का लालच ना करना। The word says that we should not be greedy of anything. वो काम ना करें कि हमने जी चीनी छोड़ दी है लेकिन शक्कर नहीं छोड़ी। It's not that we have left something and still holding on to something else. हम कहें हम तो जी अंत समय के पैगाम के लोग हैं, हमें एक परमेश्वर बपतिस्मा हमारा सही है। And we say we are the end time people and we have the right baptism. और हमने साथ में अपने लालच रखा हुआ है। And we still have the greed attached to us. तो मामला वहीं पे फिर खराब हो गया। Then the matter still is standing there itself. हमें लगता है कि सिर्फ मूर्ति पूजा करना ही पाप है। We sometimes think that idolatry is a sin. लेकिन ये भूल जाते हैं कि प्रभु ने कहा कि लालच भी जो मूर्ति पूजा के बराबर ही है। And he said, our Lord said, even the greed is also like an idolatry. तो यही वचन हम अपनी कलीसिया को सिखाते हैं। And this is what we try to teach to our church. सारा दिन प्रभु की खोज में रहो। We should be searching the Lord every day. हर काम में प्रभु को आगे रखो। We should keep the Lord first in our lives. कायनात की सारी चीजें प्रभु आपके पीछे लगा देगा। The Lord will add all things of this world unto you. ये सारी कायनात की आशीषें आपके पीछे भागेंगी। These things will be connected to you. पर सबसे पहला स्थान प्रभु को दें, प्रभु को दें। And the first things first should belong to the Lord. इधर उधर देखें, कुड़कुड़ाए ना आप। Let us not grumble. संतुष्टि सेटिस्फेक्शन रखना सीखें हम। Let us be satisfied wherever we are. हर बात में प्रभु का धन्य, हर हालात में प्रभु का धन्यवाद करें। We should be thankful to the Lord in all circumstances. स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर जब हमें देखेगा, The Lord who is sitting on this throne in the heaven, when he is watching this, कि जब हमारा हृदय एक तौबा वाला हृदय बन चुका है when our heart has become a repenting heart और प्रभु के वचन के साथ सही हो रहा है लगातार, and is getting aligned with the word of God, प्रभु भी देखिए कार्य करना शुरू कर देगा। the Lord himself starts working for us. वो ऐसे हृदयों को पसंद नहीं करता जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आता। He doesn't like those hearts which are not ready to change. वो फिर वचन कहता है ज्यादा सुनना भी थका देता है। And sometimes we hear that too much of hearing without any avail, it can cause tiredness. अगर हम सुनते ही जा रहे हैं वचन, सालों सालों से सुनते जा रहे हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा कार्य। If we are just listening and hearing the word, but we are not following it, then it is of no good avail. It's no good benefit for us. और जो प्रभु की जो शिक्षा वाली चल रही है, जो करेक्शन की शिक्षा चल रही है, And the teaching, what we are receiving today, is the teaching leading to correction. और ये सुधार का समय है। This is the time of correction. और उसकी दुल्हन जो है दिन ब दिन सुंदर बन रही है वचन के साथ। And the bride is getting beautified and improving every day by the absolute word. हम उन चीजों के पीछे ना भागें जो बड़ी जल्दी जमीन पे रहने वाली है। And we should not be running around and looking for those things which are going to be left off on this earth. और ये सारी कूड़ा करकट बनने वाली है। And this all is going to be in vain. This is all going to become rubbish. मुक्ति के लिए हम डरते और कांपते रहें। Let us be trembling for our salvation. देखिए प्रभु कार्य कर रहा है। The Lord is working definitely. और मैंने अपने जीवन में देखा है उसे कार्य करते। And I have seen the Lord working in my life. लूत ने लालच करके हरी भरी जमीन को चुना। And Lot
was the nephew of Abraham, he chose a very fertile land due to greed. और अब्राहम के हिस्से में देखिए बंजर जमीन आई थी, And then you see the barren land become the portion of Abraham. ये हमारे लिए सीखने के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो वाला। It's a very great lesson for us to learn from here. लूत को लगा कि वो धोखा करके फायदे में रह गया, And Lot realized that probably he is at much of the benefit because of this greed. उसे लगा कि पानी साथ में बहता है, जमीन बढ़िया है, यहाँ पर मेरी कमाई बहुत होगी। And he said, this is a very, very prosperous land and I will make good money from here. अब्राहम ने वहाँ पर भी धर्मीपन दिखाया, विश्वासीपन दिखाया। देखिए आप, And Abraham even acted like a righteous man even in this arrangement. अब्राहम ने कहा कि पहले मैं तुम्हें चुनने को देता हूँ, जो भी तू चुनेगा मैं उसके ओपोजिट चुनूंगा। And then Abraham gave him the first choice to Lot and told him, you can choose whatever you choose, then all that is left I will take. उसके हृदय में देखिए आप, कोई भी किसी भी तरह की या चुस्त या चालाकी, ठगी नहीं थी उसके हृदय में। Now Abraham did not have anything which was crooked or very clever as compared at the time of that arrangement. प्रभु इस तरह के इंसान को कैसे छोड़ सकता है? How can leave, ignore such a person, such a righteous man? अब्राहम ने फिर भी गिला शिकवा नहीं किया, उसे कुछ भी नहीं बुरा बोला। And then, even then, Abraham did not complain anything. क्यों, ऐसा क्यों हुआ? Why did it happen? क्योंकि अब्राहम जानता था और अब्राहम विश्वास भी करता था कि जिस परमेश्वर पे वो ईमान रखता है वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है। Because Amen. Abraham knew and he believed and trusted that the God he is trusting, he is the creator, he is the owner of the whole universe. अब देखिए, जिसने 25 साल बाद औलाद दे दी वो कैसा परमेश्वर हो सकता है? And the one who had to wait for the offspring, for the child after so many years of waiting, what kind of God he can be? लेकिन उसने पूरा ईमान भरोसा रख के इंतजार किया। But he kept on waiting with a complete faith. प्रभु का वचन भी यही कहता है कि धीरज से प्रभु की प्रतीक्षा करो। He says, the word of God says, wait on the Lord patiently. और परीक्षा को अपना काम करने दो। And let all the teachings and all the temptation and all the waiting period, let it work. और उचित समय आएगा, प्रभु आपको बढ़ा देगा। An appointed time will come when the Lord will take care of you. और उस उतने समय के लिए तुम धीरज रखो। And have patience until that time. बस यही चीज है एक चैलेंज वाली, जो लोग डगमगा जाते हैं। Now this is a great challenge where people get stumbled. लेकिन अब्राहम जैसे जैसे समय बीता गया, निराशा बढ़ती रही, वैसे वैसे वो विश्वास में तगड़ा होता गया। And as the time passed by and so many disappointments were visible, Abraham kept on getting grounded in a greater, bigger faith to his God. अब देखिए, प्रभु ने अपना कार्य शुरू किया। Now the Lord started his work. लूत का जो हरा भरा उसने एरिया चुना था लालच करके, All the greenery and all the prosperous area that the Lord had taken to his side. और याद रखें ये भी लूत है, जो वही है जो अब्राहम के साथ घर से निकल पड़ा था। And now this is the same Lot who departed from his house along with Abraham. इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो सच्चे ईमानदारों के साथ चले होते हैं। There are a lot of people who have walked around and walked with a lot of honest people. और वो भी इसी तरह ही दिखते हैं कि जैसे विश्वासी हैं। And they are also seemingly visible as if they are believers. जिस तरह लूत भी निकल आया था कि धर्मी अपने चाचे इब्राहिम के साथ निकलता हूँ, मैं भी बरकत पाऊंगा। Lot also realized and thought that I must go out with that man, righteous man Abraham, and I will equally be blessed like him. लेकिन फर्क क्या था, लूत की नीयत अच्छी नहीं थी, ना ही उसके पास कॉलिंग थी। But the difference is neither Lot nor he had a good conscience towards God. अब देखिए,
जो हरा भरा एरिया था वो बन गया सदोम और अमोरा। You see, all that green and prosperous and rich-looking areas, this became Sodom and Gomorrah. और जो भी उस आसपास के जितने भी दुष्ट बुरे लोग थे वो भी उस एरिया की लालच में खिंचे हुए वहां बस गए। And all the people who were living in that area. और अब्राहम के बंजर जमीन की तरफ किसी ने नहीं देखा। And no one had a time to look at the barren land that Abraham was allotted with. और प्रभु की ये योजना थी, प्रभु ने अब्राहम की जमीन को आशीष दी। And the Lord God blessed the land that was kept with Abraham. और देखिए अब्राहम की जमीन जो वो हरी भरी बन गई। And then there was a big transformation into the barren land to the prosperous land और for देखिए Abraham. लूत का वो एरिया कितना श्रापित हो गया कि स्वर्ग तक उसकी बुराई पहुंच गई। And you see that area that the Lord chose with because of the bad conscience, it was all destroyed. और तब तक अब्राहम बहुत शक्तिशाली हो चुका था अपने एरिया में। Abraham had become so mighty and so righteous by that time. और इसीलिए लिखा है कि धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर भलाई ब्लेसिंग आशीष ही उत्पन्न करती हैं। That's why it says in the scriptures that for the righteous man, for the good believer, all things were good for him. अब्राहम क्या घाटे में रहा? बिल्कुल भी नहीं घाटे में रहा अब्राहम। Abraham did not suffer any loss because of his conscience and his faith. शारीरिक लोगों को लगता था कि अब्राहम घाटे में चला गया, गलत फैसला लेकर लूत फायदा ले गया। The worldly people were thinking that Abraham is on a losing side and Lot has been prospering. He is going to prosper and do well. अब आप खुद ही देख लें कि कौन घाटे में रहा। भाई अब्राहम Now we can आशीष see here very clearly that who was on the losing side. और प्रभु ने हमें ये शिक्षाएं क्यों दी हैं? Why has Lord given us such lessons and such teachings in His Word? प्रभु ने इसलिए लिखवाई हैं कि हम लोग वो गलतियां ना करें जो उन लोगों ने की है, so that we should not fall into those mistakes, those errors which those people did. हजारों सालों से इंतजार कर रहे हैं मसाया का। They have been waiting for the coming of the Messiah for thousands of years. और जब वो आया उसे पहचान ही ना पाए। And when he arrived, they could not recognize him. अब वो तो चले गए, जो करना था उन्होंने कर लिया। Now they have gone. उनके बारे में हमें ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। There is nothing much we can say and talk about them. अब बात हमारी अपनी है। Now we have to stay and speak about ourselves. हम खुद कितने के तैयार हैं? How far are we ready? हम खुद कितना के वचन के साथ सही चल रहे हैं? How far are we standing with the truth of the word? ऐसा ना उनकी बात करते करते हम भी रह जाएं। May it not happen that we should be left behind while just talking about them. और देखिए ये आखिरी समय में प्रभु बहुत तगड़े तरीके से कार्य कर रहा है पूरी दुनिया में। The Lord is working mightily in these last days. वो कभी नहीं थकता, वो कभी नहीं बैठता। He never stumbles, he never sleeps. इन आखिरी दिनों में उसने पूरे जोर से कार्य किया हुआ है पूरी सृष्टि पर। He has worked mightily in these last days. बड़ी जल्दी एक आखिरी बारिश होनी है, जोएल वाली, रोमन्स 9 की 25 वाली। And now Romans 9:25 and the Joel's last rain has to happen. और दुल्हन पूरी तरह बेदारी में मजबूत तगड़ी होगी। And the bride is already and in the matured condition to receive that rain. और लिखा है जो तैयार थी वो दूल्हे के साथ चली गई। And Bible says those who were ready, they accompanied the bridegroom. और द्वार बंद हो गया। And then the door was closed. और जो रह गई उसने कहा है प्रभु द्वार खोल दे। And those who were left behind, they pleaded and requested, "Oh Lord, open the door for us." हम भी तेरे लोग थे।
We also belong to you, Lord. We also heard your message. हम भी मानते थे तू एक परमेश्वर है, बपतिस्मा तेरे नाम से है। We also believe that you are one God. हम तो भाई ब्रानम को जानते थे, हम भाई फ्रैंक को जानते थे। We knew all the men of God, Brother Branham, Brother Frank. We knew all of them. प्रभु ने कहना तुमको चाहिए था कि तुम मुझे भी जानते। The Lord would say, it was necessary that you should have known me. प्रभु ने कहा मैं पर तुम्हें नहीं जानता। The Lord would say and claim that I have never known you. और हम जानते हैं कि जो भी ये शब्द सुनेगा उसके लिए ये शब्द मौत से कम नहीं होंगे। And the one who hears such words from the Lord, they will be worse than death for that person to hear such words. और इसीलिए हमें सीरियस होने की ज़रूरत है। That is why we all need to be very serious about the whole thing. और जो मेरा भाई बहन प्रभु की ताड़ना को, प्रभु के वचन को सीरियस लेता है, And any brother and sister who takes the correction and admonition of the word of God seriously, प्रभु भी फिर उस भाई बहन को सीरियस लेता है। the Lord also takes that person seriously. आप एक सिंपल सा प्रभु का कार्य करने का तरीका समझ लें। The Lord has a very simple and straight way of working. प्रभु ने कहा तुम मेरी ओर बढ़ो, मैं तुम्हारी ओर बढ़ना शुरू कर दूंगा। The Lord says, you come, you draw towards me and I'll draw towards you. और उसके वचन पर बढ़ना प्रभु की ओर बढ़ना ही होता है। And to come to draw near his word is to draw near to the Lord. और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आज लोग जल और आत्मा से जन्मे हैं। And we believe and we thank God that the people have been born by the water and the Spirit. और जिस तरह वचन कहता है उन्होंने वचन की आज्ञाकारी पूरी की और वचन की आज्ञाकारी And as the word of God says, they have gone into obedience to the word of God. और आज वो वचन के जल से शुद्ध हुए। And then they have been washed by the word of God, the water of the word of God. प्रभु उन सभी बहनों को आशीष दे। And may the Lord bless the sisters. और प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे इस छोटे सी गवाही के द्वारा। And with this testimony, may the Lord bless you all. और मैं अगला समय भाई एमैनुअल के हैंड ओवर करता हूँ। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। And now we will continue the rest of the time for the meeting to conclude at this time. Thank you, Brother Jaswinder. God bless you. आमीन ब्रदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। And may the Lord bless all brothers and sisters who have obeyed the Lord and gone into and added to the body of Jesus Christ by obeying the scriptures and obeying the right commandment. And प्रभु उन सबको आशीष दे, भाई बहनों को जिन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना वचन के अनुसार और वचन में और प्रभु की देह में जुड़ गए हैं। इस प्रकार से वचन बताता है कि जो नजात पाता जाता था, जिसका उद्धार होता जाता था, प्रभु उनको अपनी देह में, अपनी आत्मिक देह में मिला लेता। The Lord adds them as such they were saved. The Lord adds them to his spiritual body, which is the church. God bless all of them. And now this is the time we have more or less reached the end of our meeting. And we will once again thank God for this meeting, for this time, and for those souls who have been baptized, who have obeyed the Lord, and for the work of the Lord, and not only in Ludhiana, but in Ludhiana we are really thankful, and elsewhere also, wherever, to those people on whose hearts the Lord is working, to whose hearts the Lord is talking. And it is a challenge, it is an admonition, it is a caution, all of us, that we should not take not take the things lightly. We should take the things seriously. The coming of the Lord is very, very soon. We don't know when, but how many days, how many months, how many hours, we don't know, but it's very soon. When it is very soon, the Lord knows when it is very soon for him. So what is important for us? We need to change ourselves. We need to correct ourselves.
we need to return to the Lord and His word. हमें प्रभु के वचन की ओर वापस जाना है. वो कब आ जाएगा, कितने घंटों में, कितने दिनों में, कितने महीनों में, प्रभु जानता है. हमारे पास समय नहीं है अब इस बात के लिए, और हम सिर्फ मैसेज पर मैसेज ही ना सुनते जाएं, उसके ऊपर हम चलें भी, उसके ऊपर हम उसके ऊपर अमल भी करें. We should experience the word which we are hearing. उस वचन को जो हम सुनते हैं अपने जीवनों में अनुभव करें. ऐसा ना हो कि हम सुनते सुनते उन मूर्ख वाणियों की तरह पीछे रह जाएं और दरवाजा बंद हो जाए. The foolish virgins were also hearing the word. They were also having the fellowship. They were also baptized correctly. They were also doing the Lord's Supper. They were also hearing, they were believing the message of this hour, but they were left behind because they did not take the work of the Holy Spirit seriously in their life. They were not led by the Holy Ghost. Those who are led by the Holy Ghost, they are the children of God. जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं. Let us be led by the Holy Ghost. What will Holy Ghost do? Holy Ghost will lead us into the truth and sanctify us by His word, because His word is the truth. जैसा कि हम यूहन्ना 17 अध्याय के अंदर भी हमने पढ़ा हुआ है कि उसका वचन ही सत्य है, और वचन और उसका वचन जो है वो हमें हर चीज में लीड करता है. हम हर चीज के अंदर बने रहें, प्रभु का धन्यवाद करते रहें, प्रार्थना में लगे रहें, और वचन से सीखते रहें और वचन पर चलते रहें. यही हम सबकी एक दूसरे के लिए प्रार्थना है. This is our prayer for each other, that we should stay in the word, continue to be in the word, fear God, and that is the understanding when we fear God, and we must continue to be ready, and this is the way we will overcome, when we remain obedient and stay in the word. May God bless us all. और अब हम आपकी प्रार्थना सभा को समाप्त करते हैं, and we will now finish this meeting by a word of prayer, and we will ask Brother Kishan to do the prayer and close this meeting, please. God bless you, Brother Kishan. God bless you, Brother Sundar. God bless you, Brother Emmanuel. प्रार्थना में जाने से पहले एक छोटा सा कोरस गाना चाहूंगा, जो भाई ने अभी वचन में भी उल्लेख किया था, क्योंकि हम बदलते हैं, प्रभु नहीं बदलते. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. के द्वारा बातचीत कर लिया, वो स्वर्गीय अनंत करते हुए नाव में जो सदा सर्वदा एक समान करना है, वो प्रभु उसी नाव में, वो प्रभु जिसके द्वारा हमारा उद्धार मुक्ति संभव है, उसी नाव में मैं आपके समीप आता हूँ प्रभु. जो प्रभु धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो कि होने दिया, आपने अपने दास के माध्यम से हमसे बातचीत करी प्रभु, और हमें सिखाया प्रभु कि हमें अंत के समय में कैसे धीरज रखना और स्थिर रहना आवश्यक है. हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करता हूं प्रभु आपका इस महान गवाही टेस्टमनी के लिए, जो भाई ने हमारे लिए और हम सब के जो सुनने वाले हैं उन सब के लिए आपने एक उत्साह का, वो प्रभु भले भले कामों से जो आपकी पुस्तक में आया, आपके वचन में आया है कि वो हिब्रू के पुस्तक में कि एक दूसरे को भले कामों से उकसाने में हौसला रखो, चिंता करो, वो प्रभु उसी अनुसार भाई ने आपने गवाही दी, पर हमारे लिए तो एक भले कामों में आगे बढ़ने के लिए और उकसाने के लिए वो प्रभु हमारे लिए चिंता का है प्रभु. को भाई ने चिंता किया, आपने वो प्रभु भाई के मन में और हृदय में और होठ में वो
बात रख दी प्रभु, जिससे कि हम हो प्रभु हम थोड़ी बहुत अस्थिर हो चले थे, पर अब हम हो प्रभु हम स्थिर रहेंगे प्रभु, धीरज धरेंगे प्रभु अंत तक हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस महान वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हो प्रभु आप एक समान है, पर हमारे बीच में कभी परीक्षा भी आ सकता है हो प्रभु, इसीलिए हमें स्थिर रहना आवश्यक है हो प्रभु। इस आपके जो वचन के द्वारा आज भाई ने जो बताया प्रभु, हो प्रभु आपका वचन से हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हो प्रभु धीरज को हमें अपने काम करने के देना आवश्यक है, जैसा कि अभी आपने वचन में से बताया प्रभु। हो प्रभु जब समस्या परिस्थिति कुछ कठिन आती है तो उस समय हमें धीरज धरना आवश्यक है, और वो धीरज जब अपना समय पूरा होगा तो जब आपका समय आएगा तो वो प्रभु आप आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, वो भी बताया प्रभु आपने, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने आपके दास के द्वारा बताया कि वचन में से जब अब्राहम और लूत साथ में थे तब तक आपने अब्राहम को आशीष नहीं दिया। हालेलुया प्रभु मान, जब आपका वचन बताता है जब अब्राहम और लूत अलग हो गए, वो लूत अब्राहम से अलग हुआ, नहीं कि हो प्रभु लूत ने अपना असल चीज चुना। और जैसा कि आपका वचन में आया है कि जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तब आपने उससे भेंट करके वो प्रभु आपने उसको परमेश्वर आपने उसको आशीष दी और कहा कि यहोवा ने अब्राहम से कहा आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देता है उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया प्रभु महान, आपने जब लालच रूपी लूत जब तक हमारे साथ में होता है तब हम भी आशीष से वंचित होते हैं, ये आप वचन में से देखा रहे हैं प्रभु हमें। हो प्रभु जब हम सांसारिक हो अभिलाषा इच्छा में पड़े रहते हैं तब हम फिर आशीष के भागी नहीं हो सकते, जैसा कि भाई ने अभी बताया प्रभु। और आपने वचन में से भी ये दिखा दिया प्रभु, जब तक लूत अब्राहम के साथ था आपने बात नहीं करी, उसको आशीष नहीं दी। जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तब आपने बातचीत करी उसको और उससे आशीष दी प्रभु। वो धरती के आशीष का कारण बना प्रभु, और धूल के कणकों के समान उसे ओ प्रभु आशीष संतान दी प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, उसके वंश को कोई नहीं गिन सकता प्रभु। ओ प्रभु महान धन्यवाद है प्रभु आपका इस महान वचन के लिए, इस महान विचार के लिए प्रभु, जो आपने भाई के द्वारा आज प्रकट किया प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ओ प्रभु होने दे प्रभु कि हम भी जो सांसारिक इच्छा अभिलाषा है उसको त्याग कर जो आत्मिक गुणों से भरी पूरी हो जाए प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि हमें गलाती 5:22 और 23 वाला वो फलों से भर दे प्रभु, जिससे कि हम नम्र होकर के आपके प्रेम में होकर के ओ प्रभु आगे बढ़ते जाएं, धीरज संयम के साथ में जो पवित्र आत्मा का फल है प्रभु उससे भर जाए प्रभु, जिससे कि आपके आगमन में आप हमसे प्रसन्न हो सके प्रभु। क्योंकि जब आपने पेड़ को देखा था, अंजीर को पेड़ को, जब फल नहीं था तो उसको आपने श्राप दिया था प्रभु, पर हम तो आशीषित होना चाहते हैं प्रभु कि हम आपके पवित्र आत्मा के फल से भरे हुए और आपको भाने वाला होना चाहते हैं प्रभु। जैसा कि भाई ने अभी वचन में कहा दाखलता में अगर हम ब्रांचेस हैं अगर उसमें बने रहेंगे हो तब जाकर के हम फल फलाएंगे। ओ प्रभु इसलिए हमें वचन में बने रहना आवश्यक है प्रभु। ओ प्रभु हमें वचन में बने रहने वाला सामर्थ्य दे प्रभु, जिससे कि हम अंत तक स्थिर रह सके प्रभु, और आप हम में रहे और हम ज्यादा से ज्यादा फल फलाने वाले हो सके। सहायता मदद करे, सहायता मदद करे प्रभु कि हमें नम्र वाला हृदय दे, जिससे कि हम वो आपके वचन में बने रह सके। प्रार्थना वाला हृदय दे प्रभु, हम आपसे बातचीत करते रह सके, आपसे आपके वचन में बने रह सके प्रभु। सहायता मदद करे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। वो प्रभु हर एक चीज के लिए, और धन्यवाद करता हूँ भाई ब्रदर इमानुएल के लिए जिन्होंने ट्रांसलेट किया कि उन सबको आशीष का कारण हो सके और उन सबको वचन मिल सके जो अन्य अन्य भाषा क्षेत्र से है प्रभु। भाई को आशीष देना प्रभु, भाई जसविंदर जी को आशीष देना प्रभु, उनके सेवाकाई को आशीष देना प्रभु कि और ज्यादा से ज्यादा वो प्रभु इन भाइयों को इस्तेमाल करके आपके वचन को और ज्यादा से ज्यादा बांट सके और आपके बिखरे हुए भेड़ों को वो प्रभु आपके गले में और ले आ सके।
सहायता मदद करें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपका इस महान कलाम के लिए जो प्रभु आज हमने सुना प्रभु। और आपका वचन कहता है, ओ हालेलुया प्रभु, मत्ती की यूहन्ना के पुस्तक 15 में यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है कि ओ प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि जो वचन तुमने सुना है उससे तुम पवित्र हो गए हो। ओ प्रभु हम पवित्र हो गए प्रभु आपका कलाम से। जी प्रभु हमें पवित्र बना के रखिए। हम पवित्र रोज आपके वचन से वचन सुन करके हम रोज रोज पवित्र होते और धुलते जाए, जिससे कि हम आपके आगमन में निष्कलंक, दाग रहित, झुर्री रहित हो सके। सहायता मदद करें, सहायता मदद करे प्रभु, जिससे कि हम आपके साथ में बने रह सके। हालेलुया प्रभु धन्यवाद करता हूँ, हर एक चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ। और आपकी सेवक जो आज भी आपके वचन को लिए फिर रहे विश्व भर में, उन सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। उन सब के लिए धन्यवाद करता हूँ। ब्रदर फ्रैंक लगाए जो भी आपके दास है, आपके बुलावट पाए हुए, आपके चुने हुए दास है, उन सबको आप आशीष से भर देना प्रभु, सामर्थ्य से भर देना, जिससे कि आपकी कलीसिया तैयार हो सके और वो वचन को बांट सके प्रभु, और कलीसिया तैयार हो सके। सहायता मदद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और प्रार्थना की इस कड़ी में वो प्रभु मैं उन सब भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, जो दुख कष्ट बीमारी में है, कमजोरी में है, लाचारी में है और पीड़ा में है प्रभु। उन सबको आपके सामर्थ्य वाला, शिफा वाला, चंगाई वाला हाथ से वो प्रभु छू करके उनको शिफा देना प्रभु, जिससे कि वो खड़े होकर के आपके नाम को बड़ाई कर सके, आपकी आप में स्थिर हो सके प्रभु। सहायता मदद करें प्रभु। हालेलुया प्रभु। जो घटी कमी में है प्रभु, आपका जो परिपूरी वाला रिचेस्ट भंडार है, स्वर्गीय भंडार से, खजाना से, वो प्रभु उनको आशीष देना प्रभु। सहायता मदद करें। जो जिनको वचन की आवश्यकता है प्रभु, उनको वचन से परिपूर्ण कर देना प्रभु। जिनको पवित्र आत्मा की जरूरत है प्रभु, वो प्रभु उनको पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु। ओ प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। जिनको सहायता की आवश्यक है, वो प्रभु आपसे बढ़कर कोई सहायक है नहीं। वो प्रभु हमारे निगाह आपकी ओर लागे रहे सर प्रभु, और हमारी प्रार्थना में मन लगा रहे प्रभु, ऐसा होने देना प्रभु। सहायता ओ प्रभु कि हम आपके आगमन में तैयार पाए जा सके प्रभु। प्रार्थना में निरंतर रख करके, जगा रह करके, ओ प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जागा रहो, प्रार्थना में बने रहो। इसीलिए अगर हम प्रार्थना में बने रहेंगे, जागा रहेंगे, तो आपके आगमन में ओ प्रभु हम आपको स्वागत करने योग्य हो सकेंगे। जी प्रभु धन्यवाद करता हूँ, हर एक चीज के लिए धन्यवाद करते हुए ओ प्रभु ये जो शुरुआत हुआ ये सप्ताह आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, कि आप उन सब से ओ चाल युक्ति से बचा के रखना कि प्रभु हम ओ प्रभु आपके आगमन में तैयार पाए जा सके। सहायता मदद करना प्रभु, हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु, अगर आगामी सप्ताह हमारे लिए है और आपके आगमन में देरी है तो हमारी तैयारी के लिए है प्रभु, और अगर वो सप्ताह हमारे लिए है तो फिर हम आपके नजदीक, आपकी हुजरी में वो प्रभु उपस्थित होकर के और तैयार हो सके और आपके वचन सुन सके और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो सके। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो भाई बहनों ने गाना गाया हो प्रभु आपके महिमा में, हो प्रभु उनको आशीष देना प्रभु। जो प्रभु भाई ने शुरुआत में प्रार्थना की, उस भाई के प्रार्थना के कारण हम स्थिर होकर के आपके वचन सुन सके, आपके प्रेम और शांति में होकर के उस भाई राजेंद्र के लिए भी आशीष देना प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए, आगामी मीटिंग आपके हाथ में सौंपते हुए, हर एक का योजना आपके हाथ में रखते हुए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सामर्थ्य नाम में होकर के, आमीन। Amen. Amen. God bless you, brother, for this wonderful prayer. In the name of the Lord be praised. अब हमारी आज की मीटिंग यहाँ समाप्त होती है, तो मुझे शायद थोड़ा जल्दी जाना होगा, क्योंकि मुझे एक और मीटिंग में जाना है, उधर प्रभु का वचन शेयर करना है, और मैं आप लोग से अब थोड़ा जल्दी विदा लूंगा, और प्रभु ने चाहा तो फिर हमारी मुलाकात फिर होगी। May God bless you all. God bless you. आप सब एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं। God bless you. God bless you.